today's webinar is about step-to-step education on what could be the reasons because of which conception does not take place. What should be the investigations of a couple who are trying to conceive, and what is the treatment we can offer to them. So just give us 2 minutes and then we will be back with you. I would like to invite Dr. Smithu. She's consultant at the Taj Clinic in the fertility wing to take you through the journey of what are the causes of infertility and stepwise investigations which should be done for them. Dr. Smithu, please come. Approximately 85% of the couples they achieve pregnancy within that interval, but around 15% of the couples को evaluation and further assistance की जरूरत पड़ती है. It's a worldwide problem and ये वर्ल्ड के काफी सारे कपल्स को ये प्रॉब्लम इफेक्ट हो रही है. नॉर्मली 1 ईयर की ड्यूरेशन अगर हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं फॉर 1 ईयर दैट इज इनफर्टिलिटी. बट इन फ्यू इंस्टेंसेस लाइक अगर विमेन की फीमेल पार्टनर की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है या उसको कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, उसके डिलेड मेंसेस हैं या नोन कोई यूट्राइन या ट्यूबल डिजीज है या इट्स नोन कि प्रीवियस लेप्रोस्कोपी से या किसी और इन्वेस्टिगेशन से पता है कि शी इज ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस का केस है या मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी काउंट में या मोटिलिटी में, स्पर्म काउंट या मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तब हमने 1 ईयर तक वेट नहीं करना है. एंड earlier evaluation is warranted after 6 months of unsuccessful efforts in these cases. Or evaluation of both the partners should begin at the same time. So infertility is on the rise. Globally infertility के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है. ये क्यों हो गई है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल में चेंजेस है. लाइक आजकल लोग बहुत जंक फूड ले रहे हैं and second sedentary lifestyle hai. There is no physical activity. Most of the time people are with their laptops or mobiles. कोई ज़्यादा physical activity नहीं है and that's this is the change in the lifestyle and जिसकी वजह से ये infertility की incidence में एक rise देखी गई है globally. Second thing is late marriages. आजकल both boys and girls लेट से मैरिजेस कर रहे हैं. 28-30 आजकल नॉर्म हो गया है. जैसे पहले 25 के आसपास हो जाती थी शादियां, बट आजकल एक नॉर्म हो गया है कि 28 या 30 तक भी इस चीज को भी नॉर्मल माना जाता है. एंड फर्दर लेट मैरिजेस हो रही है एंड फिर फर्दर चाइल्ड बर्थ भी डिले किया जा रहा है बिकॉज ऑफ करियर कंस्ट्रेंट्स. सो जो नॉर्मली 35 ईयर्स ही मेन एज होती है, 25 to 35 जो बेस्ट टाइम होता है टू कंसीव एंड हैव बेबीज. एंड अगर उस समय अगर आप अपने करियर में ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहें सो फिर आगे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है. देयर इज इंक्रीज इन स्ट्रेस. कुछ भी करियर रिलेटेड, अपने work related stress, all these factors they are causing a rise in infertility. Environmental toxicity, air pollution, water pollution, all these kinds of pollutants they are causing a rise in infertility. A rise in PCOD, जैसे फीमेल्स में PCOD के इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल. सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाने पीने में हेल्दी हैबिट्स नहीं है. सिडेंट्री बिल्कुल ही सारा दिन एक काउच पोटैटो पे जैसे सोफे पे ही बैठ के सारा अपना लैपटॉप पे काम करना है. ऑल दीज wrong habits are causing a rise in PCOD cases. Sexually transmitted infections भी rise हुए हैं and unsafe abortions, unattended births, smoking, alcohol, drugs, all these are causing a
rise in infertility. टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी दो तरीके की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो है जिसमें कपल दे हैव नेवर एवर कंसीव्ड, and secondary infertility में the female partner has got pregnant once irrespective of the regardless of the outcome. Now coming to the causes of infertility, uh, contributes around 30% in the infertility के causes में मेल पार्टनर 30% रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इन 30% ही फीमेल पार्टनर के causes होते हैं, and 10% both males associated with the infertility problem, and in around 25% cases the cause is not known, it's unexplained. Now coming to the male infertility causes, ovulatory disorders are the most common causes. Actually यानी बनना नहीं डे 5-6 से एंड डे 14 तक एग रप्चर हो जाता है, बट जिनकी ओवुलेटरी एग बनने में और एग के रप्चर होने में प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से एंड दैट इज द कॉज ऑफ देयर इनफर्टिलिटी. Second is endometriosis, pelvic adhesions. कईयों में ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, आइदर यूनिलैटरल और बायलैटरल. कईयों में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जैसे हाइपरप्रोलैक्टिन, अनएक्सप्लेन्ड होता है, द कॉज इज नॉट नोन. And similarly, coming to the causes for male infertility, in 42% of the cases, varicocele is the cause, and in 22% of the cases, the cause is not known. 14% of the cases में ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, जैसे कि टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं बट वो बाहर इजैकुलेट में निकल, and in 20% of the cases there are some genetic abnormalities. Now, what are the risk factors for infertility? The most important is the age, maternal age as well as the paternal age. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, age, maternal age after the age 35, एग की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही डिक्रीज करने लग जाते हैं सिग्निफिकेंटली. सो जो ओवेरियन रिजर्व ऑफ द फीमेल इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग. पैटर्नल फैक्टर ये है कि इट हैज बीन सीन दैट जैसे जैसे एज बढ़ती है, इवन इन द मेल्स स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, उसमें स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सेकेंड थिंग इज वेट, आइदर ओवरवेट और अंडरवेट, दोनों ही हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस करते हैं. अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होंगे तो आपका एग ठीक नहीं बन पाएगा एंड दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी. नॉर्मल वेट, हम वेट से बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, एंड the ideal body mass index is from 18.5 to 24.9. And the other factors are tobacco intake, alcohol intake. All these habits, they are a risk factor for infertility. Workup of an infertile couple. Couple should be worked up as a unit. When an infertile couple comes to the clinic, the couple is worked on 4 steps. सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग होती है of both the partners. Second is examination of both the partners. Third is lab investigations, and fourth is diagnostic procedures. आज के वेबिनार में फर्स्ट 3 पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, एंड इन सब्सिक्वेंट वेबिनार्स डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कवर किए जाएंगे. So coming to the history from female partner, age is, as I told you before, age is very important. Age 35 के बाद the egg quality and as well as the quantity it decreases. 35 के बाद ovarian reserve का कम होना लाजमी है. Duration of infertility.
कितने टाइम से आपकी मैरिज हुई है, यू हैव बीन मैरिड फॉर हाउ लॉन्ग, और कब से आप रिलेशंस रख रही हो, ऑल दीज दिस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्टिलिटी हिस्ट्री, ड्यूरेशन ऑफ कोहैबिटेशन, एनी प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रीवियस कॉन्ट्रासेप्शन अगर आपने कोई यूज किया हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल्स, आपके साइकिल्स रेगुलर है या इरेगुलर है, आपका 28 डेज के साइकिल है या डिलेड साइकिल्स हैं, कितने दिन आप ब्लीड करते हो. अगर आपके साइकिल्स डिलेड हैं, दैट मीन्स यू माइट बी ए केस ऑफ पीसीओडी, या आपको हाइपोथायराइड या हाइपरप्रोलेक्टिमिया भी हो सकता है. एंड इन केस अगर आपको मेंसेस के दौरान डिस्मेनोरिया रहता है, पेन ज़्यादा होती है, so you might be a case of endometriosis. So the menstrual cycle details, comes the typing of intercourse and frequency of intercourse. आपकी intercourse की frequency, is it adequate or not? This is very important in the history taking. Then comes the history of previous कोई pelvic surgery की कोई history हुई हो, पहले कभी कोई surgery हुई हो, या sexually transmitted infections की कोई history हो, या abnormal cervical smears की. So this is also very important to know before proceeding for the infertility treatment. पास्ट हिस्ट्री में हाइपोथायरॉयडिज्म, आपकी कोई थायराइड की कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही, अगर चल रही है तो किस डोज पे चल रही है, कब से चल रही है, ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट. ड्रग हिस्ट्री, कोई आपकी काफ़ी टाइम से कोई क्रॉनिकली कोई आप कोई दवाई ले रहे हो, कोई मेडिसिन चल रही है, या कोई आप रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहे हो, ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड does the female partner, she washes immediately after intercourse? Uh, it's very important that after having intercourse, the female partner lies for at least half an hour before getting up. And the timing of intercourse, it's very important. The patient, the female partner should know what is the fertile period. जैसे इन केस अगर किसी पेशेंट का 28 डेज का रेगुलर साइकिल है, तो जिस दिन मेंसेस शुरू होते हैं, दैट इज द डे 1 ऑफ द साइकिल. सो द फर्टाइल पीरियड इज फ्रॉम डे 10 टू डे 14. इन दिनों में अगर आप रिलेशंस करते हो, तो उस समय आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेस्ट होते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन द एग मैच्योर्स एंड इट रप्चर्स. एंड इस समय अगर आप रिलेशंस रखते हो, तो एग्स एंड स्पर्म मीट करते हैं एंड यू माइट गेट प्रेग्नेंट. Then comes history from the male partner. It's very important to know from the male partner whether he is having any problem having intercourse, and whether the frequency of intercourse is adequate. In the sexual history, you have to ask, is the marriage consummated? Is the couple using any lubricants during intercourse? Because कुछ lubricants like KY jelly में spermicidal agents होते हैं, जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं, जो कि स्पर्म्स के लिए अच्छे नहीं होते. सो इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, देन यू शुड नॉट यूज दिस lubricants. Then comes personal habits. मेल पार्टनर की पर्सनल हैबिट्स कैसे हैं, वेदर ही इज टेकिंग सोना और स्टीम बाथ्स, और ही इज wearing tight underwears, because normally sperms टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, एंड स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, 37 डिग्री से बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, एंड दैट इज व्हाई द टेस्टिस इज देयर इन द स्क्रोटम व्हिच इज हैंगिंग डाउन द एब्डोमेन. So if you are taking sauna or steam bath or having wearing tight underwear, तो आपका temperature of the testis will rise, and that will impair normal spermatogenesis. वो normal good quality sperms को बनने से मतलब उनको बनने नहीं देंगे. Then if you have a, अगर आपकी कॉन्स्टेंटली सिटिंग जॉब है, जैसे कि कंप्यूटर्स की का कोई टेक्निकल जॉब है, यू आर सिटिंग थ्रू आउट द डे, सो इवन दैट टाइम एवरी 30 to 45 मिनट्स आपको उठ के थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रॉटम इट डिक्रीजेस.
And then comes the stress and the irregular diet. आजकल की जो junk food है, all these is increasing the male infertility. Then comes excessive alcohol, cigarette smoking, more than 10 per day, even that is not good for sperms. Recreational drugs are should not be taken. Then comes the medical history. is इसमें मेल पार्टनर की पहले कभी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो या टेस्टिस में healing हो, कोई स्क्रोटल एब्सेस हो, पहले कभी कोई इंजरी हुई हो चाइल्डहुड में, जैसे नॉर्मली क्रिकेट बॉल्स लग जाती हैं, देन कभी पहले बचपन में मम्स हुआ हो जिससे कि ऑर्काइटिस हो जाती है, टेस्ट सर्जरी पहले कोई प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री हो या फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी हो, ऑल दिस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now coming to the examination, फीमेल पार्टनर का पेशेंट जैसे ही आता है हम उसके पल्स, बीपी एंड वेट लेते हैं. वेट इज टू कैलकुलेट द बीएमआई. व्हाट इज बीएमआई? इट इज बॉडी मास इंडेक्स, जो कि कैलकुलेट होता है वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. जो हमारा आइडियल बीएमआई होता है दैट इज बिटवीन 18.5 टू 24.9, एंड इसके अबव जैसे मोर देन 25 ओबीस, and if at all you are underweight or overweight, that will cause hormonal disturbances and that will impair ovulation. Then अगर फीमेल में हर्सुटिज्म है, लाइक अगर चिन में फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, चिन में या अराउंड द निपल्स या ऑन द एब्डोमेन टमी में है, सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस जो कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स में देखे जाते हैं. सो अगर आप केयरफुली फीमेल पार्टनर को एग्जामिन करो, सो यू कैन गेट ए डायग्नोसिस बिफोर डूइंग द इन्वेस्टिगेशंस. देन कम्स द डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स. अगर पेशेंट को गैलेक्टोरिया है, अगर देयर इज सम डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स, दैट कैन बी ए साइन ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया. स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके हम एक तो पैक्समीर ले लेते हैं, that's for cervical cancer screening, and that's a must for all the female patients. एंड सेकेंड हम ये देखते हैं कि कोई वेजाइनल डिस्चार्ज या वेजाइनाइटिस, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. Then pelvic examination is done to rule out pelvic inflammatory disease or fibroids or tumors. Then coming to the investigations, basic infertility evaluation comprises of investigations for both the males and females. Male की सबसे important first and the foremost investigation is semen analysis, and in females we do hormonal profile, endometrial biopsy, evaluation of tubal patency by HSG, tests for occurrence of ovulation, detection of uterine abnormalities and determination of peritoneal abnormalities. इन सारे investigations के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगी. Semen analysis. This is the mainstay of the in investigating male infertility, and at least 2 serial samples should be assessed before labeling a patient as normospermic or oligospermic. And semen collection से पहले 2 to 3 days of abstinence होना चाहिए. The sample is collected by masturbation and it's collected in a sterile container, and then it's liquefied and then studied under a microscope. WHO जो हमारा लेटेस्ट 2010 क्राइटेरिया है, वो इसकी जो हमारे स्पर्म कंसंट्रेशन का जो लोएस्ट लिमिट है, they are saying this as 15 million, and the motility should be at least more than 32%. We have a specialized semen analysis that is called the U-test. U-test. It's a new innovative app in which आप मोबाइल में अपने खुद के अपने स्पर्म्स देख सकते हो कि हाउ व्हाट इज द काउंट एंड व्हाट इज द मोटिलिटी, and
Now the further female investigations वाला part Dr. Preeti cover करेंगे. Now I invite Dr. Preeti for the further talk. Thank you, Dr. Smithu. It was very, very elaborate and nice coverage. Okay, so आपने मेल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में सारा पढ़ लिया है. One has to remember that usually जब भी किसी में इनफर्टिलिटी होती है, हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि द फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, और हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके फीमेल इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, but no one has bothered even to get a simple semen analysis done. Nowadays it has been seen कि जितना females are responsible for difficulty in conception, उतने ही male partners भी responsible होते हैं, and around 30 to 40% of cases में आजकल male infertility is the main reason why females are not able to conceive. Also मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि semen count only is not important. वो सीमेन में जो स्पर्म्स है उसकी जो काउंट है, उसके अलावा उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनकी मोटिलिटी कैसी है, एंड young children nowadays are taking lots of proteins. Now these artificial proteins which are taken in the gym, they are also not only carcinogenic, most of them, but they also are responsible for the falling sperm count. So one should be very careful what they are consuming and what they are eating. Coming to the female investigations, कंप्लीट ब्लड काउंट सबका होना चाहिए जिसमें हमें आपका हीमोग्लोबिन पता चलता है. एट द सेम टाइम अगर हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो वो आपको डायरेक्टली प्रेगनेंसी होने से तो नहीं रोकता है, पर अगर आप कमजोर रहेंगे, यू विल फील weak, lethargic, to have relations also. It may also point to a condition known as thalassemia. थैलेसीमिया पंजाब बेल्ट में काफी एंडेमिक है. इसमें क्या होता है कि आपका हीमोग्लोबिन थैलेसेमिक ट्रेट होता है, या यू आर थैलेसेमिक कैरियर और यू आर थैलेसेमिक पेशेंट. और एक बहुत सिंपल टेस्ट जिसको हम HP इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, उससे पता चल जाता है. ये अगर एक वन ऑफ द पार्टनर्स इज अ कैरियर, तो फिर वो बच्चे में आगे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ज्यादा से ज्यादा कैरियर हो सकता है. पर अगर दोनों पार्टनर्स आर कैरियर्स, then there is a very high chance that the child can also become thalassemia. Now the thalassemic children, they are very lovely, but then problem is that their life is not that easy. उनको हर 2 से 3 हफ्ते में ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो आजकल बहुत सारे टेस्ट हो गए अवेलेबल हैं, जिसमें कि अगर आप दोनों पार्टनर्स थैलेसेमिक कैरियर्स हो, तो हम पहले से ही ये डायग्नोस कर सकते हैं कि जो एम्ब्रियो बना है IVF के थ्रू, जो एम्ब्रियो बना है वो बेबी जो है वो थैलेसेमिक तो नहीं है, और अगर थैलेसेमिक है तो हम उसका ट्रांसफर रोक सकते हैं. ये हम आपको आगे के वेबिनार्स में बताएंगे. Another important test is FSH, LH, thyroid profile and prolactin. Thyroid is very important क्योंकि thyroid अगर ऊपर या नीचे होता है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है. पॉलीसिस्टिक ओवरीज में थायराइड may be abnormal, and also thyroid abnormal होने की वजह से बेबी के जो बेबी है उसके मेंटल डेवलपमेंट में भी इशू आ सकता है. प्रोलैक्टिन होने, हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स होने की वजह से भी योर कंसेप्शन में बिकम प्रॉब्लम. FSH LH रेशियोज एबनॉर्मल है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ पॉइंट करते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज AMH. व्हाट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन और AMH टेस्ट. AMH टेस्ट जैसे कि आप शुरू में डॉक्टर स्मिथू ने आपको बताया कि जब एक गर्ल बॉर्न होती है उसके अंदर 2 मिलियन एग्स होते हैं नीचे ऊपरी. आफ्टर दैट द eggs they keep on getting destroyed. So AMH values, they tell us the egg quantity in your ovaries which are left. So with the age the AMH values may decrease, और ये हमें ये पता करने में हेल्प करती है कि आपके वायबल एग काउंट्स कितने बचे हैं, आपको कितनी जल्दी प्लान कर लेना चाहिए बेबी. और अगर आपकी AMH वैल्यूज बहुत कम है तो देन इट माइट बी अ गुड आइडिया टू टेक हेल्प अर्ली. ब्लड शुगर लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डायबिटीज है किसी भी पार्टनर को तो इट विल हिंडर इन कंसेप्शन एंड ऑल्सो इन प्रिवेंटिंग अ सेफ प्रेगनेंसी. ब्लड ग्रुप RH बहुत इंपॉर्टेंट है. RH नेगेटिव विमेन में हम उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं. अगर वो RH पॉजिटिव है तो देन देयर इज चांस दैट फ्यू एंटीबॉडीज में डेवलप इनसाइड द विमेन फ्रॉम द प्रेगनेंसी विच में हार्म द बेबी. ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हस्बैंड RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो ये हम मान के चलते हैं कि जो बेबी है वो RH पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं.
तो कई बार वो बेबी का ब्लड जब मदर के ब्लड में जाता है तो वो कुछ एंटीबॉडीज बनाता है विच कैन कम बैक एंड अटैक द चाइल्ड. सो इफ द मदर इज RH नेगेटिव एंड हस्बैंड इज RH पॉजिटिव, तो उसमें प्रेगनेंसी के बाद हम एक इंजेक्शन लगाते हैं एंटीडी. और इनफैक्ट आजकल तो हम अराउंड 28-29 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी भी लगा देते हैं टू प्रिवेंट द आइसो इम्यूनाइजेशन. बाकी इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वेबिनार में कवर करेंगे. Then rubella IgG, varicella IgG is a very important test. In fact, ये प्रेगनेंसी होने से पहले जो भी कपल्स ट्राई कर रहे हैं टू कंसीव, उन्होंने करा लेना चाहिए इन द विमेन, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो लेडी है वो रुबेला इज जर्मन मीजल्स. जर्मन मीजल्स के लिए वो जो लेडी है वो उसके अंदर एंटीबॉडीज है कि नहीं है उसके अगेंस्ट. दूसरा वेरिसेला इज चिकन पॉक्स, कि आपको पहले अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो आपका आईजीजी पॉजिटिव आएगा, विच इज अ गुड थिंग. इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में आपको रुबेला और आईजीजी, ये रुबेला एंड वेरिसेला नहीं होगा और वो आपके बेबी को हार्म नहीं करेगा. अब अगर कोई कपल हमारे पास आता है और वो दे आर वरीड अबाउट कंसेप्शन, सो नाउ वी विल गो ऑन टू द स्टेप वाइज मैनेजमेंट. सबसे पहले हम ये सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि कहीं आपके यूट्राइन कैविटी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो रही है, क्योंकि यूट्राइन कैविटी इज द एरिया जहाँ पे प्रेगनेंसी, जिसको हम प्रेगनेंसी बेड बोलते हैं, जहाँ बेबी आके इम्प्लांट होता है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर इनफर्टिलिटी इज द ट्यूबरक्लोसिस. तो उसके लिए बहुत सिंपल टेस्ट होता है. पीरियड के फर्स्ट सेकंड डे पर हम आपके ब्लड, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, उसका सैंपल ले लेते हैं, या यूट्राइन कैविटी के अंदर एक बहुत फाइन कैनुला से वो सैंपल ले लेते हैं लाइनिंग का. दिस इज टोटली पेनलेस प्रोसीजर, और उसको जांच के लिए भेज देते हैं कि कहीं टीबी तो नहीं बन रही है, क्योंकि अगर टीबी बन रही है तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और उसमें सबसे पहले टीबी का 6 महीने का इलाज करना आवश्यक हो जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज द इवेल्युएशन ऑफ द ट्यूब्स. मैं एक बार फिर से रिकलेक्ट करती हूँ, क्योंकि ओवरीज, हर विमेन में ये 2 ओवरीज होती हैं, 2 ट्यूब होती है, ये यूट्राइन कैविटी है. ओवरी में से एग निकल के ट्यूब में आता है, तो स्पर्म्स हैं वो ट्यूब में आके फर्टिलाइज करते हैं, और एम्ब्रियो जो है यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होता है. सो प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण क्या हो सकते हैं, या तो इस लाइनिंग में कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, या ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो. अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो भी आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ना IUI से हो पाएगी. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस HSG दैट दिस इज द यूट्रस, these are the tubes and this is a tube which is blocked. So अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो भी आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल या IUI तरीके से नहीं हो सकती. उसके लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है HSG, जिसमें नीचे से डाई डाल के आपकी ट्यूब्स को इवेल्युएट कर लेते हैं, और उस नीचे से डाई डालते हैं सर्विक्स से, और उसका फिर एक्सरे जैसे फिल्म ले लेते हैं. And in that you can see the cavity of the uterus, you can see the tubes, and these are the patent tubes, and you can see the spill of dye. अगर आप इसमें देखेंगे तो यूट्राइन कैविटी ठीक है, ट्यूब बिल्कुल एंड तक ठीक है, फिर यहाँ आके स्पिल नहीं है. इसका मतलब है कि ट्यूब के एंड्स में ब्लॉक है. अगर ट्यूब्स के एंड में ब्लॉक है तो वो एग ओवरी से पिकअप नहीं करेगी, और आपके नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस नहीं होते. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए होते हैं कि उनके IUI भी हो चुके हैं, और प्लस उनकी ट्यूबल इवैल्यूएशन नहीं हुई हुई है. अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो IUI का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि IUI में भी कंसेप्शन ट्यूब में होता है. तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आपके ब्लड टेस्ट हुए हुए होने चाहिए, आपकी टीबी की जांच हुई होनी चाहिए, आपकी जो ट्यूब्स हैं उनकी पेटेंसी चेक हुई होनी चाहिए, और अल्ट्रासाउंड करके ये देखना बहुत जरूरी है कि यूट्रस की जो शेप है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई सेप्टम वगैरह तो नहीं है, कोई पॉलिप्स तो नहीं है, क्योंकि अगर छोटे एंडोमेट्रियल पॉलिप्स होते हैं तो कई बार वो प्रेगनेंसी होने से रोक सकते हैं, पर कई बार वो कुछ भी नहीं कहते हैं. देन another thing, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, we also see for the antral follicular count, AFC. So this is your ovary. So what is AFC? These are your egg count, कि आज की डेट में आपकी ओवरी में कितने एग्स मैच्योर होने शुरू हो गए हैं. So you can see 1 2 3 4 5 6 7, पर ये 2 डायमेंशनल व्यू है, पर नॉर्मली इसको अगर ठीक से करो तो आप AFC ठीक से ले सकते हो. आजकल 3D मेथड्स भी आ गए जिनसे हम आपकी एक्यूरेट एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में अगर आपकी AFCs ज्यादा है तो जो दवाइयां दी जाती हैं बनने के लिए, दे कैन लीड टू ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, व्हिच इज अ पोटेंशियली रिस्की कंडीशन.
दूसरा, अल्ट्रासाउंड करते हुए हम आपकी लाइनिंग की थिकनेस भी मेजर करते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग कितनी थिक बन रही है। और थिकनेस मेजर करने के साथ साथ दो चीजें और देखी जाती हैं कि उसमें ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है कि नहीं और उसमें पेरिस्टाल्सिस है कि नहीं। तो उससे भी दीज आर सम थिंग्स व्हिच वी लुक एट द टाइम ऑफ योर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एंड योर अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन, क्योंकि अगर उसमें पेरिस्टाल्सिस है, फ्लो अच्छा है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उस साइकिल में। सो दिस इज हाउ द फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इज डन। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपके टीबी नहीं है, आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, आपके ब्लड टेस्ट ठीक आ गए हैं और या एबनॉर्मल है, उनकी दवाइयाँ आपको हम दे चुके हैं जैसे थायराइड और प्रोलैक्टिन की, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड डे से आपको एग बनने की दवाई देके 7-8 डेज से आपका अल्ट्रासाउंड करके आपके एग्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। सो दिस इज नोन एज द फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकल इज योर एग, और उसको हम एक एक दो दो दिन के गैप पे मॉनिटर करते जाते हैं कि जब तक कि ये जो एग है ये अराउंड 16-17 mm का ना बन जाए। जब वो 16-17 mm का बन जाता है तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जो आपकी चॉइस है कि आपको इंजेक्शन लेना है कि आप नेचुरली देखना चाहते हो कि एग रप्चर हुआ कि नहीं। एग रप्चर क्या होता है? एग रप्चर इज कि जब ये डोमिनेंट फॉलिकल, जो बड़ा फॉलिकल है, वो खुल जाता है और उसके अंदर से जो एग है वो निकल के आपकी ट्यूब में आ जाता है। सो दैट इज नोन एज ओवुलेशन। जब भी ओवुलेशन होता है तो एग आपकी ट्यूब में 2 दिन जिंदा रहता है और स्पर्म्स आपकी ट्यूब में 3 दिन जिंदा रहते हैं। तो फर्टाइल पीरियड, जैसे पहले भी हमने आपको बताया, वी कैन कैलकुलेट कि एग रिलीज होने के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, और जिस दिन एग रिलीज हो रहा है, दिस वीक इज योर फर्टाइल पीरियड। Other test which we can do is the hysteroscopy. Hysteroscopy, hystero मतलब uteroscopy मतलब उसको देखना. Now this is a very advanced test and it can be done in the OPD only. इसको ऑफिस hysteroscopy बोलते हैं. जिनके बार बार प्रेगनेंसी फेलियर्स हो रहे हैं या प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है या IVF फेलियर्स हो रहे हैं या रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो वी हैव द ऑफिस hysteroscope. ये टोटली पेनलेस प्रोसीजर होता है और आप बिल्कुल अवेक होते हो, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है. तो उसको हम यूट्राइन कैविटी में ऐसे इंस्टिल करते हैं and then we can see आपकी यूट्राइन कैविटी. यू कैन सी इन दिस कि आपकी यूट्रस की कैविटी आपको भी दिखती है और हमें भी दिखती है, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे ये नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है और यहाँ पे ट्यूब्स थी और इधर ट्यूब्स की ओपनिंग है. ये आप देख सकते हैं पॉलिप कैविटी के अंदर दिख रहा है. तीसरा, यहाँ पे ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है. सो इससे हमें पता चल जाता है कि कैविटी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. व्हाट कुड बी द रीजन? दूसरा, हिस्ट्रोस्कोपी करने से उसकी जो एबनॉर्मल लाइनिंग है वो भी निकल जाती है. And the studies have shown that after hysteroscopy, the conception chances definitely increase. Next procedure is the laparoscopy. Laparoscopy is a major surgery. में क्या difference होता है? Medical terms में anything. Laparoscopy is a small procedure for the people who are expert in it. इसमें आपको पूरा बेहोश किया जाता है और आपकी नाभि से एक छोटा सा छेद बना के just 5 mm छेद, ये स्कोप अंदर डाला जाता है और आपकी यूट्रस और ओवरीज को इवैल्यूएट कर लिया जाता है. एंड ट्यूब्स एट द सेम टाइम नीचे से डाई डाल के सर्विक्स में से ट्यूब्स की पेटेंसी भी चेक कर ली जाती, करके क्रोमोपर्टिवेशन या डाई टेस्ट, साथ ही 2 छोटे छोटे कट अमी पर आते हैं और आप शाम को घर जा सकते हो. सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट हाउ टू अप्रोच अ कपल जो इनफर्टिलिटी करके क्लिनिक पे हमारे सेंटर पे आता है. दीज आर द वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल्स पूरे वर्ल्ड में. दिस इज द वे हाउ एन इनफर्टाइल कपल शुड बी अप्रोच्ड. एंड आई होप ये वेबिनार आपको अच्छा लगा होगा. और सेम टाइम नेक्स्ट Tuesday, infertility module of the webinars, which will be the next webinar and when and what we are going to teach in it. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you so much, ma'am. So a quick information about the touch screen services. Firstly, we take all precautions for COVID-19 consultation with prior appointment only. COVID testing is done prior to delivery or any surgeries. We take care of all the safety parameters. We have our pharmacy also, quick delivery, quick services of home delivery of medicines available on your doorstep. And इसके लिए आपको कॉल करना है 9613112000 पे. इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और मेडिसिन जो है वो अपने डोर स्टेप पे आप मंगवा सकते हैं.
We have home blood sample collection services also. 9915496821 हमारा नंबर है और 9915748821 नंबर है. इस पे कॉल करके आप जो है अपनी ब्लड सैंपल कलेक्शन की फैसिलिटीज जो है वो अवेल कर सकते हैं. अगर जैसे कि लाइक अभी कोविड चल रहा है तो लोग ट्रैवल भी बहुत कम कर रहे हैं. अगर कोई होम लाइक घर पे बैठ के वीडियो कंसल्टेशन करना चाहता है या ऑडियो कंसल्टेशन करना चाहता है डॉक्टर प्रीति जिंदल के साथ, तो उसके लिए वो इस नंबर पे अपनी जो है बुकिंग स्लॉट बुक करवाएगा. जो नंबर है वो है 9915748821 एंड 9888448803. आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. अगर किसी ने लाइक लेट लॉगिन किया है, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है इस वेबिनार के रिलेटेड, तो वो हमारी वेबसाइट पे जा सकता है. वेबसाइट नीचे आ रही है www.thetouchclinic.com. इस पे आप लॉगिन करके हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और जो आज की लेटेस्ट वीडियो थी जिसमें डॉक्टर स्मितू और डॉक्टर प्रीति जिंदल थे, आप उसके बारे में भी दोबारा सुन सकते हैं. हमने पहले भी वेबिनार्स किए थे एंड अगेन हमने अब स्टार्ट किया है वेबिनार्स जो आज से स्टार्ट हुए हैं. हमारे जो वेबिनार्स है वो एवरी वीक हुआ करेंगे. वीक में 2 बार. एक होगा एवरी ट्यूसडे 4 to 5, टाइमिंग विल बी सेम 4 to 5, जिसमें जो ट्यूसडे को होगा वो इनफर्टिलिटी पे होगा और जो फ्राइडे को होगा वो प्रेगनेंसी या गायनी से रिलेटेड जो होगा वो उस दिन होगा. अब जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है इनफर्टिलिटी का वो है 13 अक्टूबर को, जिसमें डॉक्टर प्रीति जिंदल एंड डॉक्टर ईशा जो है वो स्पीकर है, जिसमें हम ओव्यूलेशन, इंडक्शन एंड फॉलिकल मॉनिटरिंग के बारे में आपको बताएंगे. बट जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है वो अब नेक्स्ट जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है उसमें है जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो हम उसके बारे में आपको जो है सर्कुलेट कर देंगे. अगर कुछ भी किसी को किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है वो 9915748821 पे या 9888448803 पे